Hello and welcome students. Samir Dhabalia here. Today we see the continued topic of the Spearman's rank correlation method students. Spearman's rank correlation method. In my earlier video, okay, you see that how to calculate the R by Spearman's rank correlation method. In the sums are given Rx and Ry. We have a Rx and Ry. Okay, but today we have given a X and Y students. X and Y. So from X and Y, first of all, we have to find out Rx and Ry. So what is the difference of the earlier sums and this one is that in earlier sums, Rx and Ry was already given. You can see from my part 4 video which I uploaded earlier. Okay, Rx and Ry. But today we see that X and Y was given. And from that X and Y, we have to find out Rx and Ry. Very simple procedure, students. How to find? To see. Marks in statistics, marks in accountancy. X and Y was given. Calculate rank correlation coefficient. Specify किया है calculate rank correlation coefficient. So see X 78, 36, 98, 25, 75, 82, 90 and 62. So we have to find out Rx. The very simple procedure to find Rx is nothing but the assign the rank. How to assign rank? Assign a rank first for a largest observation. So in X, largest observation is 98. So assign the rank first. Second largest 90. Assign rank second. Third 82. Fourth 78. Rank fifth 75. Sixth 62. Rank 6. 7 36. And 25 is the last, rank 8. Total 8 observation. Very simple step, student. Same for Y. Marks in accountancy. The Y was given. Again, doing the same procedure. In a Y, assign the rank for the highest to lowest. The highest is 91, rank first. Second, 86, rank second. Third, 84, rank third. Fourth, 68. 5, 62. 60, rank 6. 55, rank 7. And last, 51, rank 8. To get it, Rx and Ry, we have to find it. What is the difference is that in earlier sums Rx and Ry आपको दिया था, but today from X and Y we have to find out Rx and Ry. Now procedure was same, D and D square. So first find out the D. Now to find D, Rx minus Ry. 4 minus 3, 1. 7 minus 8, 1. Minus 1, 1 minus 1, 0. 8 minus 6, 2. 5 minus 4, 1. 3 minus 5, minus 2. 2 minus 2, 0. 6 minus 7, minus 1. Sum is not required, but sum इसका 0 ही आएगा. Now d square आपको क्या चाहिए फॉर्मूला में d square. तो इसका स्क्वायर 1 minus 1 का स्क्वायर 1 0 2 का 4 1 again 4 0 1. Sum is 12. The formula is Spearman's rank is R equal to 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1. तो 1 minus 6 sigma d square कितना है हमारा 12. 12 n कितना है 8. 8 square minus 1. 1 minus 12 into 6 72 upon 64 minus 1 63 into 8. So 1 minus 0.1429. The 0.8571 round value is 0.86. Here some students interpret 0.86 is a close to 1. The high degree of positive correlation. क्या लिखेंगे? High degree because of close to 1. Positive plus में answer है इसे positive correlation between rank obtained by marks in statistics and marks in accountancy. Everyone clear? Very simple sum. Clear? So difference क्या है कि Rx and Ry we have to find it. Okay now. Next sum students. Suppose अभी जो सम्स किया वहां पे कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं था स्टूडेंट्स. बट सपोज इन अ केस व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड, तो एट दैट सिचुएशंस हम कैसे रैंक देंगे? क्लियर? तो सी एग्जांपल वी कैन से टाई. उसको हम क्या बोलते हैं? टाई इन ऑब्जर्वेशन. जब कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो ना, वी कॉल एज अ टाई इन ऑब्जर्वेशन व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल. व्हेन अ टाई अकर्स, जब टाई हो, करेक्शन इज नेसेसरी इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला में कुछ चेंज आएगा इन द रैंक कोरिलेशन. This correction is to be done by correction factor. तो कैसे होगा? By finding the CF. तो पहले हमको CF फाइंड करना होगा. कब करना है स्टूडेंट्स? अगेन ओनली इन केस ऑफ व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल और रिपीटेड, तभी, अदरवाइज नहीं. इसके पहले के समय कोई भी ऑब्जर्वेशंस रिपीट नहीं हो रहे थे तो हमने नहीं किया. पर ये समय ऑब्जर्वेशन रिपीट होंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट द CF. CF मींस करेक्शन फैक्टर.
So what is the formula for correction factor? Summation of m cube minus m upon 12. The question is that what is m? M is nothing but the number of times the observation is repeated. M क्या होगा? Number of times the observation is repeated. तो फाइनली फॉर्मूला हमारी ये हो जाएगी 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस ये नया आ गया सी एफ क्यू बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू सी एफ आएगा. सी एफ मतलब करेक्शन फैक्टर अपॉन सेम एन एन स्क्वायर माइनस 1. लेट अस सी मच मोर क्लियर बाय द सम्स. फाइंड द रैंक कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट. सेल्स और प्रॉफिट के बीच में रैंक कोरिलेशन फाइंड करना. तो सी सेल्स एक्स दिया हुआ 25, 58, 215, 72, 58 देखो अगेन आया 58 और 58, 25 भी आ गया 90 and 162. मतलब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस रिपीट हुए. तो सी हाउ टू असाइन द रैंक. सेम प्रोसेस. हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक. हाईएस्ट कौन सा है? 215 रैंक फर्स्ट. तो फर्स्ट रैंक हो गया. अब 162 रैंक सेकेंड हो गया. 90 रैंक थर्ड कंप्लीट. 72 रैंक फोर्थ कंप्लीट. नाउ 72 के बाद आ रहा है 58. 58 दो बार आ रहा है स्टूडेंट्स. 58 एंड 58 टू टाइम. तो कहां तक रैंक असाइन हो चुका था? 4 तक तो हो चुका था. तो कहां से स्टार्ट करना था हमको? रैंक नंबर 5 से. बट 58 दो बार आ रहा है तो क्या हुआ? टाई हुआ. तो नथिंग टाई को सॉल्व कैसे करना है? बाय नथिंग बट द एवरेज. कौन से रैंक पे एवरेज हुआ है? 4 तक तो रैंक असाइन हो चुका था. 4 तक तो रैंक नंबर 5 और रैंक नंबर 6 पे टाई हुआ. तो वी कैन डूइंग एवरेज 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. क्यों 2? बिकॉज दो बार ऑब्जर्वेशन रिपीट होगी. अगर 3 बार रिपीट होते तो 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा कर. क्लियर? यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हुए तो 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5.5 एंड 5.5. तो 58 को कौन सा रैंक दिया मैंने? 5.5 और 5.5. क्लियर? तो 5 और 6 रैंक असाइन हो चुका है स्टूडेंट्स. क्लियर? तो कहाँ से नंबर स्टार्ट होगा? हमारा 7 से. 7 रैंक पे आ रहा है. 58 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 25 ही आ रहा है. तो 25 भी दो बार रिपीट हो रहा है. देखो 25 एंड 25. तो अगेन ये भी टाई हुआ. बट कहाँ से रैंक देना स्टार्ट करना था? 7 रैंक से. बिकॉज 5 और 6 तो असाइन हो चुका था तो 7 से स्टार्ट करते. तो दो बार रिपीट हुआ है तो टाई हुआ 7 और 8 रैंक में. तो 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7.5. 7.5. क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर? मतलब इन शॉर्ट जब रैंक टाई हो ना, इक्वल ऑब्जर्वेशन है, तो आपको एवरेज निकालना है. अगर 2 टाइम रिपीट हो डिवाइड बाई 2, 3 टाइम रिपीट हो डिवाइड बाई 3. नाउ सी द नेक्स्ट फॉर y सेम टाइप. 500 रैंक फर्स्ट. सेकेंड 340 रैंक सेकेंड. थर्ड 220 रैंक थर्ड. फोर्थ 140 रैंक फोर्थ. देन 115 रैंक 5. 115 तक हो गया. नाउ सी द 115 का डोरा नंबर कौन सा है? डायरेक्टली 65. 65 65 65 स्टूडेंट्स 3 टाइम आ रहा है. मतलब 5 रैंक तक तो असाइन हो चुका है. रैंक नंबर 5 तक हमने दे दिया था. गेट इट? उसके बाद नंबर आ रहा है 65. तो रैंक नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. 65 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है. तो टाई हुआ. तो अगेन कैसे सॉल्व करोगे? बाय एवरेज. कौन से रैंक से स्टार्ट करेंगे? 6 रैंक से. बिकॉज 5 तक तो रैंक असाइन कर दिया था हमने. तो 6 प्लस 7 प्लस 8. क्यों 3 लिए? बिकॉज 3 बार आ रहा है. 65 65 65 और रैंक नंबर 6 से स्टार्ट हुआ है. तो 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 बाई 3 बिकॉज 3 टाइम रिपीट हुआ है. तो 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3. ओके. तो क्या आ रहा है? 21 डिवाइड बाई 3 7. मतलब 7 रैंक असाइन करेंगे. तो एवरेज कितना है इसका? 65 का 7. क्लियर एवरीवन? 1 2 3 4 5 तक तो हो चुका था. 6 से स्टार्ट करते. तो 6 नंबर पे कौन सा आ रहा है? 65. और 65 3 टाइम्स आ रहा है. दैट इज 65 3 टाइम. दैट मींस रैंक नंबर 6 से स्टार्ट करना था. तो 6 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3. 21 डिवाइड बाई 3 दैट इज आंसर 7. क्लियर? तो Rx और Ry मिल गया. नाउ द स्टेप वाज सेम. डी फाइंड करना और डी स्क्वायर. तो डी 7.5 माइनस 7, 5.5 माइनस 4, 1 माइनस 1. तो डी फाइंड करोगे ऐसे. देन डी स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.5 माइनस का स्क्वायर. तो इसका सम हो रहा है 6. नाउ सी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको सी एफ फाइंड करना है. और सी एफ क्या था? यहाँ पे देखो m क्यूब माइनस m अपॉन 12. तो आपको सी एफ का कैलकुलेशन सेपरेटली दिखाना होगा पहले. सी एफ 3 कॉलम चाहिए उसके लिए. रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ टाइम द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, m क्यूब माइनस m अपॉन 12.
तो अगेन रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, तो ये सब में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए? तो पहला 25 रिपीट हुआ। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसको ऊपर नीचे लिख सकते हो। एक कौन सा रिपीट हो रहा है? 25। देखो यहाँ पे एक्स में 25 रिपीट हो रहा था, कितनी बार रिपीट हुआ? वो 2 टाइम। फिर कौन सा रिपीट हुआ? 58 रिपीट हुआ, वो कितनी टाइम? 2 टाइम। फिर यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा था? 65 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स। तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ टाइम कितनी बार रिपीट हुआ? एम क्यूब माइनस एम अपॉन 12, ये आपका एम है। 25 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 टाइम। तो एम क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। तो कैसे मिलेगा? 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12, 2 क्यूब 8 माइनस 2 अपॉन 12, 8 माइनस 2 6, 6 अपॉन 12 0.5। सेम वे 2 ही है, तो आंसर भी सेम ही आएगा 0.5। 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 12, तो 3 क्यूब 27 माइनस 3 अपॉन 12, 27 माइनस 3 24 अपॉन 12 2। तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2 का सम करोगे स्टूडेंट्स, आंसर कितना आ रहा है? 3। तो आपको CF मिल गया कितना? 3। नाउ दिस फाइनल फार्मूला में आप आर फाइंड करेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया था? 6। कितना था हमारा? सिग्मा डी स्क्वायर 6। CF कितना आया हमारा? 3 अपॉन n 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n स्क्वायर 64 माइनस 1। 1 माइनस 54 अपॉन 504, 1 माइनस 0.1071, 0.8929, राउंड वैल्यू 0.89। अगेन सेम इंटरप्रिटेशन, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट। गेट इट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है CF कब फाइंड करना है? व्हेन टाई इन ऑब्जर्वेशन, जब ऑब्जर्वेशन रिपीट हो तभी, अदरवाइज नहीं। गॉट इट? वन मोर, सी find the rank correlation coefficient between reasoning ability and English speaking. Marks in reasoning ability and English speaking. तो 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे A B C D, ओके। मार्क्स इन रीजनिंग एबिलिटी, मार्क्स ये CRX नहीं, ये मार्क्स है मतलब एक्स हुआ, क्लियर? ये एक्स है। ऑल आर सेम, नोटिस डेट 5 5 5 5 5, सबके सेम मार्क्स, ओके। एक्स एंड वाई मार्क्स इन इंग्लिश 2 माइनस 2 0 एंड 2, ओके। तो यहाँ पे देखो और भी क्लियर आइडिया होगा, ऑब्जर्वेशंस रिपीट हो रहे हैं हमारे। तो फर्स्ट एक्स देखो 5 5 5 5 5, क्लियर सुन? तो ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, तो टाई हुआ यहाँ पे। तो कैसे रैंक असाइन करोगे? तो एक ही नंबर से 5 5 5 5 5, तो कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स। तो रैंक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम नॉर्मली। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, बिकॉज 5 रैंक में टाई हो गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टाइम द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। तो कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 टाइम। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15 होगा, 15 डिवाइड बाई 5 3। सबका रैंक कितना हुआ? 3। क्लियर एवरीवन? नथिंग बट द हमने एवरेज लिया है, कोई भी यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं है, कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो सबके बीच में टाई हो गया। तो 1 2 3 4 5 प्लस करोगे डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे देखो y 2 माइनस टू 0 2, तो ये सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? लार्जेस्ट नंबर 2, क्लियर? लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ? सबसे बड़ा 2। तो टाई हुआ। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 एंड 2, 2 टाइम्स आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक में टाई हुआ स्टूडेंट्स। तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा? 1.5 1.5। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक असाइन हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? नंबर 0। तो कौन सा रैंक होगा? थर्ड, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड रैंक तो असाइन हो चुका था। तो कौन सा रैंक आएगा? थर्ड। थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। अब कौन सा आ रहा है? लास्ट -2, तो भी 2 बार आ रहा है, -2 एंड -2। तो कौन से रैंक से स्टार्ट करना था? फोर्थ रैंक से, तो भी 2 बार आ रहा है। तो 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4.5 4.5। गॉट इट एवरीवन? इन शॉर्ट, आपका जब ऑब्जर्वेशन रिपीट हो तो आपको ये देखना है कि टाई हुआ है, तो आपको उसका सॉल्यूशन एवरेज निकाल के करना है, नथिंग एल्स। एवरीवन क्लियर? ओके। तो आर वाई भी मिल गया आपको। नाउ डी आर एक्स माइनस आर वाई, डी तो है, आर एक्स आपके पास आ गया, आर वाई 3 माइनस 1.5, 3 माइनस 4.5, 3 माइनस 4.5 एज वन, और उसका स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25 माइनस 1.5 का स्क्वायर 2.25, अगेन सेम 2.25, टोटल इज 9।
तो डी स्क्वायर तो मिल गया। अब क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? सी एफ। क्यों सी एफ फाइंड करेंगे इस सम में? बिकॉज अगेन ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए, तो क्या फाइंड करेंगे? सी एफ। ओके, कितने ऑब्जर्वेशन रिपीट हुए सम में? एक तो 5 है, कितनी बार रिपीट हुआ? 5 टाइम। दूसरा कौन सा है? 2, 2 टाइम। तो तीसरा कौन सा है? -2, वो भी 2 टाइम। देखो 5, 2 और दूसरा -2। क्लियर? तो फाइंड करेंगे m क्यूब माइनस m अपॉन 12। तो 5 क्यूब माइनस 5 अपॉन 12। तो 5 क्यूब 125 माइनस 5 अपॉन 12। तो 5 क्यूब कितना होगा? 125 माइनस 5 120 अपॉन 12। तो आंसर इज 10। सेम 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 जो पीछे सम में किया। 2 क्यूब 8 माइनस 2 6 अपॉन 12 0.5 0.5 टोटल 11। गॉट इट? The same r equal to 1 minus 6 sigma d square plus cf upon n square minus 1. तो 1 minus 6 sigma d square कितना है सम में? 9 प्लस cf कितना है हमारा? 11 अपॉन n कितना है? 5 n square 25 minus 1. Finally we can say 9 plus 11 20 into 6 upon 120. So r equal to 1 minus 120 upon 120 1 minus 1. Finally answer is 0. तो कैसे इंटरप्रेट करोगे? लैक ऑफ कोरिलेशन। क्या लिखोगे? लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश स्पीकिंग। एवरीवन क्लियर? लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश स्पीकिंग। एवरीवन क्लियर? Everyone. Now see, almost we can say topic was simple and clear. Now we can see some of the typical type of sums for the same rank correlation. Everyone see very simple type of sum, but try to understand. It's a typical type of sums normally. Informations of a health index x. X क्या है? Health index. And the life expectancy is y. X is a health index, y is a life expectancy obtained for a 10 people. तो क्वेश्चंस प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स रीड करो। x क्या है? हेल्थ इंडेक्स। y क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 10। तो n क्या हुआ? 10। डेटा आर दिस डेटा आर रैंक टू फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस रैंक्स वाज फाउंड टू बी। क्या लिखा है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस रैंक was found to be 42.5. तो सम का मतलब क्या होता है? सिग्मा। स्क्वायर ऑफ रैंक्स ऑफ डिफरेंस। ओके, तो क्या हुआ? सिग्मा डी स्क्वायर आपको दे दिया है। सिग्मा डी स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस रैंक आर एक्स माइनस आर वाई। डिफरेंस हुआ ना, तो उसका स्क्वायर। तो क्या हुआ? डी स्क्वायर और उसका सम। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस रैंक 42.5. But it was observed that health index 70 was repeated thrice 3 times and life expectancy 45 was repeated twice. Find the rank correlation. Clear? What says कि भाई एक ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि एक 70 नंबर जो x में था, हेल्थ इंडेक्स क्या था? x। 70 नंबर जो x में था और 3 टाइम रिपीट हो रहा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो y में था वो 45 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आपको फाइंड करना है करेक्ट रैंक कोरिलेशन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इज अ टिपिकल टाइप ऑफ सम्स। एक्चुअली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम सब अब डिफरेंट टाइप के सम्स देखेंगे। तो n क्या हुआ? 10। नंबर ऑफ पीपल कितने दिए थे? 10। सिग्मा डी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रैंक को बोलते हैं सिग्मा डी स्क्वायर 42.5 स्टूडेंट्स। x क्या है? हेल्थ इंडेक्स। y क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ना x कौन सा नंबर था? 70। कितनी बार रिपीट हुआ? थ्राइस। मतलब 70 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम। y मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन सा नंबर था? 45। वो रिपीट कितना हुआ? ट्वाइस 2 टाइम। तो रिपीट हुआ उसका मतलब क्या हुआ? CF फाइंड करना होगा। सी द कैलकुलेशन फॉर CF। रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कौन से? 70। नंबर ऑफ टाइम द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। 70 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम। तो m क्यूब माइनस m अपॉन 12। 3 क्यूब माइनस 3 अपॉन 12 द सेम। 27 माइनस 3 24 अपॉन 12 2। 45 कितनी बार रिपीट हुआ? 2। 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12 0.5। टोटल कितना हुआ? 2.5। फॉर्मूला तो है ही आप लोग के पास। r इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर सब में दिया था कितना? 42.5। CF कितना फाइंड किया हमने? 2.5 अपॉन n कितना है सब में? 10 10 स्क्वायर 100 माइनस 1।
So we can say proper calculations. 1 minus 270 upon 990. 1 minus 0.27 to 0.73. Clear everyone students? Such kind of sums. चैप्टर की फॉर्मूला कंप्लीट हो चुकी है. जस्ट नाउ वी सी द सम डिफरेंट टिपिकल टाइप्स ऑफ सम आइदर बाय कार्ल पियर्सन या स्पीयरमैन्स रैंक. स्पीयरमैन्स रैंक आपका टॉपिक आज ही पूरा हो जाएगा फ्रॉम दिस वीडियो. ओके, नेक्स्ट अगेन वी सी वन मोर टाइप ऑफ सम्स फॉर स्पीयरमैन्स रैंक. नेक्स्ट सम देखो स्टूडेंट्स. इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन ऑन अ रैंक गिवन बाय टू जज to 8 contestant of dance competition is given below. दो जज है, 8 टोटल कंटेस्टेंट है, तो n कितना हुआ 8. क्या दिया हुआ है? सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू 126. तो इनडायरेक्टली दिया हुआ है. ये क्या होता है? सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई क्या होता है? डी. तो सिग्मा डी स्क्वायर इनडायरेक्टली आपको दिया हुआ है. क्लियर? सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई क्या होता है? डी. तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 126. फाइंड स्पीयरमैन्स रैंक. तो वेरी सिंपल सम फॉर नॉर्मली आस्किंग 2 and 3 marks. तो 1 minus 6 sigma d square upon n square minus 1. 1 minus 6 sigma d square कितना था सम में? 126 upon n 8 n square 64 minus 1. 1 minus 756 upon 504. 1 minus 1.5 we get minus 0.5. Clear everyone students? Minus 0.5. To see everyone, in my next video you can see some of the short sums of chapter number 2 correlation coefficient by Spearman's rank or by the Karl Pearson. Also we can see some properties by the correlation coefficient. Clear? If you not subscribe my channel, please subscribe it. You will get notification whenever I upload any video. Clear? Bye bye students. Thank you.